attempted coup. There was an attempted coup, and it is said that Israeli Mossad was helping some army generals to overthrow the current Abdullah regime. King Abdullah II. The second. So what we understand is that we have to take this in a bit of history. The country of Jordan is like very strategically important as well, because अगर आपने Jerusalem जाना है, if you have an Israeli passport, if you have an Israeli stamp on your passport, and you want to go anywhere in the Muslim countries, Saudi Arabia, Iran, Pakistan, Afghanistan, Oman, Qatar, if you want to go anywhere, if you have an Israeli stamp, it's very difficult to get into these countries. So the only other way to get to Jerusalem is through Jordan. And plus the fact that Jordan has at the first, I'm sure you could explain this better. The king of Jordan was with the Palestinian people. He knew the struggle of those people and he helped those people. और PLO जो है वो they had their whole setup in Jordan, but things went out of control, and we know the Black September. We all know. But the point is that the Jordanians have always played the Muslim side very carefully and the other sides very carefully, and they have had the status. And we have to know that the king of Jordan is the custodian of the third most important Muslim site, Masjid Aqsa. Anyways, so Masjid Aqsa is what we're trying to say is that it seems that through some sort of we also know that Saudis and Israelis are also working together, and Saudis have also an interest that unke andar Masjid Aqsa ki custodianship aa jaye. As soon as the king of Jordan was overthrown, so the custodianship would have been questioned. Interesting fact is that the current king's father was also murdered in Masjid Aqsa because some Palestinian thought that he was doing deals with Israel. That's also a fact. So, taking into consideration, what do you think about Jordan and what is really happening in Jordan? Well, because Israel, it's a very small, Israel has a very small land area, and uska jo thinnest, I think 30-40 kilometers wide hai. And because of this very thin, strippy type of land area that Israel has, and it is sitting in the middle of the Arab world, that its enemies from the first day. जिस दिन वो बना था उससे अगले ही दिन अरब्स ने मिलकर उनके ऊपर पहली जंग कर ली थी, और उसके बाद वो हर 5-10 साल में उनके ऊपर एक जंग करते रहे until नासिर अब्दुल्ला was died in Egypt, ठीक है, और अनवर सादात उनकी जगह आ गए, और यहाँ पर इन्होंने इजिप्ट ने पहले पीस डील ट्रीटी साइन की इजराइल के साथ, उसके बाद जॉर्डन ने पीस ट्रीटी साइन कर दी. तो एक तरह से ये समझा जाता था कि इन दोनों पीस ट्रीटीज़ के बाद इजराइल जो है ना वो बहुत स्टेबल हो गया है, बिकॉज उसके इमीडिएट दोनों जो नेबर्स हैं ना वो उसके एलाइज बन गए, फ्रेंड्स बन गए, और उन्होंने पीस डील्स कर ली. अब वो उनके साथ जंग नहीं करेंगे, ठीक है. और जॉर्डन को इस वजह से बहुत बुरा भी समझा जाता था कि भाई मुसलमान समझते हैं कि जॉर्डन ने क्यों पीस डील कर ली. लेकिन ये जो अब वाक़या हुआ है ना, इसमें ये थोड़ा सा चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि जॉर्डन का इजराइल के साथ बहुत सालों से बहुत ही कोल्ड और बुरे इश्यूज़ चल रहे थे, और इन्होंने मतलब कुछ महीने पहले गालिबन जो प्रिंस था, जो हायर अपेरेंट अभी है, किंग अब्दुल्ला का जो बेटा है,
वो he wanted to go to Jerusalem on the night of शब मेराज, ये जो अभी गुजरी है। एंड व्हाट दे सेड, इसराइलियों ने कहा कि तुम अपना बहुत बड़ा एंटोराज लेकर आ रहे हो, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हो, हम अलाउ नहीं करेंगे। और उसने ये कवर स्टोरी बनाई कि शब रात मेराज है, मैं आऊँगा, सिक्योरिटी होगी तो नॉर्मल मुस्लिम नहीं आ सकेंगे, तो इसलिए मैं नहीं आता। अच्छा, लेकिन एक्चुअली दिस हैड हैपेंड, और अगले ही दिन नेतन्याहू वांटेड टू फ्लाई हिज हेलीकॉप्टर ओवर द जॉर्डेनियन स्पेस एंड गो टू यूएई, तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, वी आर नॉट अलाउइंग यू। तो अब ये सामने खुलकर ये मामलात आ गए, और उसी के कुछ दिन बाद आप ये देख रहे हो कि ये कू वाली अटैम्प्ट हो रही है, और जॉर्डन स्पेसिफिकली कह रहा है कि इजराइल इज़ बिहाइंड दिस, ठीक है। और कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि ब्लैक वाटर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये चीज़ लाइक इजराइल के लिए हमें, मतलब ये एक चीज़ हमें दिख रही है कि ये बहुत ही, मतलब एक तरफ से तो इजराइल कह रहा है कि जी मेरा बड़ा अच्छा सिनेरियो बन गया, यूएई भी फ्रेंड, कुवैत भी फ्रेंड, बहरीन भी फ्रेंड, इजिप्ट तो पहली फ्रेंड, तो जी मैं तो बड़ा अच्छा बन गया हूँ, सऊदीज़ तो है ही फ्रेंड्स। तो लेकिन आपका इमीडिएट नेबर जिसके ऊपर आपकी वो थी, वही लाइक आपके साथ सही नहीं है। एंड इसके बिहाइंड डील ऑफ सेंचुरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज शरीफ मक्का, हिज सन्स, द हाशमाइट डायनेस्टी, ये सारे आई वुड लाइक टू हियर अबाउट दिस। हाँ, तो पहले मैं आपको डील ऑफ सेंचुरी की बात बताती हूँ कि काफ़ी साल से जो है ना, ये ट्रम्प के इरा में से डील ऑफ सेंचुरी की बातें सामने आना शुरू हो गई कि जी हमने बड़ी अच्छी डील कर ली है और पीएलओ भी मान जाएगी, और मतलब सऊदीज़ भी हमारे साथ हैं, और जी हम ये करेंगे। तो बाद में जब काफ़ी, यानी कुछ अरसे पहले डील ऑफ सेंचुरी का जो नक्शा सामने आया, उसमें ये पता चला कि जी ये डील है कि गाज़ा की जो पट्टी है वो इजिप्ट को दे दी जाए, वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन को दे दिया जाए, और जेरूसलम को जो है ना वो मतलब इसके अंदर कैपिटल बना दिया जाए इजराइल का। तो अच्छा, उसी के कुछ ही दिनों बाद एक और नक्शा, प्रॉपर नक्शा जो सामने आया, उसमें दिखाया गया कि जो वेस्ट बैंक की जो वो पट्टी जो जॉर्डन के साथ लग रही है, वो सारी की सारी पट्टी इजराइल के पास होगी। तो अब आप ये सोचो कि जॉर्डन को एक तरफ आप ये मैसेज दे रहे हो कि पूरा वेस्ट बैंक हम आपको दे देंगे, दूसरी तरफ आप ये बता रहे हो कि पट्टी तो हमारे पास होगी, तो आप वहाँ से कैसे कनेक्ट हो रहे हो? मतलब ये बहुत ही अजीब सा डायमेंशन सामने आ रही थी, और ऐसा लग रहा है कि बीच में मिसट्रस्ट और लाइक गेम खेलना एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसा चल रहा था। और इसके अलावा यू जस्ट आस्क के हाशमाइट जो उनकी आई वुड वांट टू से, आई वांट टू ऐड दिस के जो कि शरीफ मक्का था, he revolted against the Turkish Empire, the Turkish Khilafat, and Sharif Makkah did not get what he wanted. He died saying कि यार मुझे कुछ दे दो, मुझे तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था, मुझे तुम लोगों ने पूरा टर्किश कैलिफेट प्रॉमिस किया था, मगर उसके कुछ, एक बच्चे को जॉर्डन मिल गया और दूसरे बच्चे को इराक मिल गया। तो जो कि हाशमी डायनेस्टी है, ये दिस इज़ अ ब्लड लाइन दैट कम्स फ्रॉम आवर प्रॉफिट, एंड what is मतलब कि what is with these countries and with their dynasty? It seems like कि ब्रिटिश ने जो है, और अगर आप इनकी बॉर्डर्स भी देखें ना सारे कंट्रीज़ के, तो बड़े सीधे सीधे हैं। तो ब्रिटिश को जो अच्छा लगा कि यार तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, इतना सा तुम्हें दे दिया, उतना सा तुम्हें दे दिया, ड्राइंग कॉपी पे उन्होंने लाइंस लगा दी, ऐसे लगा। अफ्रीका में भी ऐसे हुआ, अफ्रीका में ऐसे हुआ। तो एंड देन रिसेंटली जो कि हाशमी ख़ानदान की अगर हम लोग बात करें, और जो अभी जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं हमारी आंखों के सामने, कि किंग अब्दुल्ला द फर्स्ट, उसने कहा कि मेरा छोटा भाई जो है ना, उसको ही इज़ नेक्स्ट इन थ्रोन, बट व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई ही सेड कि मेरा बेटा जो है ही इज़ नेक्स्ट ऑफ थ्रोन। जब उसका बेटा आया किंग अब्दुल्ला द टू, ही सेड कि मेरे जो चाचा हैं, माई अंकल्स सन इज़ नाउ द नेक्स्ट इन थ्रोन, but after he got a little stabilized, his own son
was 5 years old when he came into power. Now he's like, when he got to around 10 years old, he announced कि नहीं, the next in line for the throne is my own son. तो I mean कि थोड़ी सी psychology भी, and what is your in-depth मतलब कि what do you think about this? मोनार्ची की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली इट्स नथिंग दैट एनी वन ऑफ अस वुड मतलब ट्राई टू डिफेंड. ये मोनार्चीज़ में तो ऐसे होता है. तो लेकिन ये है कि द रीज़न वाई when the British won the First World War and Ottoman Empire was broken down, तो and Sharif of Makkah they were just using the Sharif of Makkah, जो भी उसके साथ उन्होंने ट्वीटी की थी उसके ऊपर, तो वो नहीं खड़े हुए. लेकिन because both of his sons had armies, they were fighting on the fronts, तो they thought कि अगर हम इनको यहाँ पे लगाएंगे तो because of their bloodline तो उनके वो मुल्क जो है इनको कबूल कर लेंगे और होंगे ये हमारे पपेट्स. और हम इनको इंस्टेड करेंगे तो इराक़ में हालांकि उसका कोई ताल्लुक तो नहीं बनता ना, बिकॉज़ उसकी पॉपुलेशन में से तो वो बंदा नहीं है. तो लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ब्लड लाइन तो वो उसको फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे. इसी तरह से जॉर्डन में भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. तो इस तरह से उनको यूज़ किया गया. और इराक़ में तो वो नहीं ठहर सके बिकॉज़ पार्टी ने आके उनको निकाल दिया था. लेकिन जॉर्डन में वो सर्वाइव कर पाए हैं. तो जहाँ तक तो ब्लड लाइन की बात है तो ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट इफ दे हैव दिस रियल ब्लड लाइन, तो हम डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं. और उनकी कस्टोडियनशिप को, तो उनकी कस्टोडियनशिप तो एक्चुअली मक्का और मदीना की भी बन जाती है उस तरह से, बिकॉज दे आर सन ऑफ द शरीफ ऑफ मक्का. बट द थिंग इज कि अभी तो हम बात करें ना टुडे कि आज का सिनेरियो क्या है. बट द हाशमाइट्स इन जॉर्डन आर वेरी डिफरेंट from the ruling party because those were Saudi Arabia. Saudi kingdom जो इस वक्त है वो तो कोई भी ब्लड लाइन में से नहीं है ना. वो तो नहीं, they are the South family was from this Riyadh and this upper areas. They were not from Makkah and Medina. They were अलग, एक वो अलग फैमिली थी जो कि मक्का शरीफ और मक्का से पहले ही एम्बैटल्ड रहते थे. वो they were never happy with the you know rulership of Makkah and Medina. वो पहले से ही एक डिसिडेंट फैमिली थी जो कि हमेशा इनके साथ कुछ ना कुछ बैटल्स करते ही रहते थे. एंड द ब्रिटेन दे यूज्ड देम कि तुम लोग हमारे साथ मिलकर ऑटोमन्स को हटाओ और तुम लोगों को एक अरब एम्पायर तुम लोग अपनी बना लेना बाद में, सिर्फ ऑटोमन्स को निकाल दो. टर्किश थे ना वो. ऑटोमन वर गोरा पीपल, दे वर टर्किश. और बाकी अरब वर्ल्ड सारी अरब थी एथनिकली. तो दे वर ऑफ दिस थिंग बिकॉज हो ये रहा था कि बिकॉज हर सल्तनत जैसे भी होती है ना अपने अरूज के बाद जवाल पे तो आती है. वो जवाल के ऊपर थे और बाकी जो यूरोप था वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत आगे जा रहा था. तो दे स्टार्टेड ब्लेमिंग कि जी ऑटोमन की वजह से हम जो है मुसीबत में पड़े हुए हैं, इनकी वजह से हमारी तरक्की नहीं हुई है, तो हम अलग होकर तो हम बड़ा अच्छे हो जाएंगे. लेकिन उन्होंने क्या किया, ये अब एक अलग कहानी शुरू हो जाएगी.